Number one, re-verification and reassessment of APST certificates. Am I true? Second is strengthening of inline permit issuance system. This is the second one. And the third one is regarding the issue relating to non-APST lineage claims, that is offspring. And the fourth one is illegal infiltration and illegal immigration. ठीक है, ये चार मुद्दा है जो आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किया है. वी सपोर्ट इट एंड आई सपोर्ट इट. और coming to the points one by one, re-verification and re-issuance of ST certificates. Let us be very concise on that. और इस पे क्या है, हम लीगली स्पीक करेंगे क्योंकि आपने तो बता ही दिया कि बहुत सारा लोग यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, ST सर्टिफिकेट इश्यू. सेम चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पोकन बाय माय फॉर्मर स्पीकर्स. तो इसमें what are the remedies to be adopted by the government and what the resolution is to be adopted today in this meeting, उस पे मैं कहना चाहूँगा. और ST सर्टिफिकेट इशू करने का हमारा यहाँ पे अरुणाचल, इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देयर इज नो एनी एक्ट, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है जो कि गवर्न करता है कि ST सर्टिफिकेट किसको इशू करना है, किसको इशू नहीं करना है, कौन सा ग्राउंड में उसको रेफ्यूज करना है, कौन सा ग्राउंड में रिजेक्ट करना है. ऐसा कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है. Accepting few guidelines and notifications which governs and regulates the process of issuance of scheduled tribe certificates to the indigenous people of the state of Arunachal Pradesh. Besides this, there is no any statutory law. So therefore, I would like to request and suggest that the ST Bachao Andolan committee may please make this proposal and place it before the government for consideration, saying that a particular law has to be enacted by the legislature, taking into consideration the interest and welfare of the indigenous tribes of Arunachal Pradesh. This may kindly be taken note of. This is very important. Unless and until we have a very effective machinery, हम लोग चाहे जितना भी मीटिंग कर लो, जितना भी गैदरिंग्स कर लो, कोई सक्सेस नहीं होने वाला. मैं बता रहा हूं आपको, होगा लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. आज तक वैसा नहीं होगा. इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को ये प्लेस करना है कि जल्द से जल्द एक लेजिस्लेचर गवर्निंग रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ ST सर्टिफिकेट हैज टू बी एनेक्टेड एंड that act has to contain the provisions regarding imposing of punishment and penalty to the persons or the officers who issues the certificate in a fraudulent manner, and as well as to the persons, as well as to the parents, as well as to the wards. In fact, I would mention rather parents, if considering the age of that student to be a minor. तो उसमें punishment कैसा होना चाहिए, अगर fraudulently obtain करता उसका भी punishment होना जरूरी है. So the only right and the effective manner under this situation would be requesting the government. हमारा power है, see, government is for the people, by the people, है ना, सबके लिए. हम लोग democratic country में we have all the right to place our grievance before the government, and government is duty bound to accept it, provided that is logical. ये चीज है. और पिछला I think 2-3 years पहले Sol Dudum sir and your friends have come to Namsai regarding the issue of grant of ST certificate to Nang Tipra Mina Manlo. I remember this. That is a matter of record. क्योंकि that has become vital. That is the reason why I'm just reiterating that. वो आया था. उसका end क्या हुआ है? We should know the fact. उसका end क्या हुआ? Of course आप लोगों ने ये issue raise किया है, लेकिन how did it come to an end? Whether it has really come to an end at this stage, and what are the legal remedies and ramifications, उसका effect क्या, उसको भी जानना जरूरी है सर. तिप्रामी मानलों का केस में FIR रजिस्टर हुआ है, saying that she has obtained a false ST certificate and has obtained a false ST certificate from Assam and has from Arunachal Pradesh and has obtained the Assam. I would mention Assam, and has obtained service in the state of Arunachal Pradesh, thereby depriving the eligible candidates. तो ये हुआ, FIR रजिस्टर हो गया. FIR रजिस्टर होने के बाद में हमारा DC साहब ने भी बहुत सारा करेस्पॉन्डेंसेस किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिप्रेजेंटेशंस एंड कंप्लेंट्स. तो अल्टीमेटली आई वाज द काउंसिल से, हमारा तो लीगल काउंसिल का एक वो होता है, ड्यूटी होता है कि अपना एक क्लाइंट को डिफेंड करो, वो तो लीगल स्पीकिंग. तो हमारा ये था कि गवर्नमेंट का भी आंख खुल गया उसमें.
पुलिस वालों को भी पता नहीं कि एसटी सर्टिफिकेट का केसेस में केस रजिस्टर करना है या नहीं करना है। द राइट रेमेडी इज टू, अगर फॉल्स एसटी सर्टिफिकेट का कोई भी केस है तो द राइट रेमेडी इज टू अप्रोच द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक कमिटी होता है जो कि कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी होता है। दे विल वेरीफाई इट एज टू द करेक्टनेस, legality and the validity of the issuance of the ST certificate slash SC certificate slash other backward classes certificates. So basically that committee is known as a caste scrutiny committee. That is not being said by me, that has been said by the Honorable Supreme Court in the case of Kumari Madhuri Patil, decided way back in the year 1994. उसमें clearly mention किया है Honorable Supreme Court ने, in case of fake issuance of fake ST certificate, आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक कमिटी गठन करना है जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अभी तक भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, अभी हुआ है लेकिन उसमें भी कुछ खामियां है, मैं बता रहा हूं। अगर ये मीडिया से स्टेट गवर्नमेंट सुन रहा है तो आंख खोल लेना चाहिए। कमिटी मतलब ए ड्यूली कंस्टिट्यूटेड कमिटी। आई एम रिटरेटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग द वर्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी मींस उसमें स्पेसिफिक कोई भी ऑफिसर को पिक एंड चूज, हेलो मिस्टर यू बी द कमिटी मेंबर्स, यू बी द कमिटी मेंबर्स, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एक कमिटी में जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गठन कर दिया है वही होना है। अदर देन दैट अगर कोई भी ऑफिसर करता है दैट विल अगेन बी नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। मैं ये बता रहा हूं, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को। ये बोलता है कि अगर किसी भी तरह का ऐसा होता है तो फिर अभी भी सिचुएशंस है जो ऑलरेडी हो चुका है, फ्यूचर में नहीं होने के लिए एन एक्ट हैज टू बी लेजिस्लेटेड, ये मैं बता रहा हूं। और ऑलरेडी जो हो चुका है उसको डील करने के लिए आप फाइल करो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक टाइम दो, सर आप देखिए इतना फॉल्स सर्टिफिकेट इशुएंस हुआ है, आपकी तरफ से कमिटी का रिपोर्ट सबमिट करो, जो सुप्रीम कोर्ट कुमारी माधुरी पाटिल का केस को रेफर करो। और अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, सिंस देयर वाज वायोलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट rendered in the case of Madhuri Patil, the entire criminal prosecution was set aside and I have represented in this. मैं बहुत गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि that is very much related and it has become vital for the purpose of today's discussion. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वो तिपरामी मानलोंग वर्सेस द स्टेट ऑफ एपी का अभी भी आप बैठा हुआ है, गूगल में सर्च करो तो वो रिपोर्टेड है, वो जर्नल्स में जीएलटी में भी रिपोर्ट किया हुआ है, बिकॉज दैट हैज गॉट ए वेरी वाइटल इशू। तो इसीलिए रिगार्डिंग ऑलरेडी द ग्रांट ऑफ एसटी सर्टिफिकेट्स, आप लोगों को कमिटी मेंबर्स या कोई भी आदमी स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेंट दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट विल फॉरवर्ड इट टू द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी इन टर्म्स ऑफ द माधुरी कुमारी पाटिल्स केस। अकॉर्डिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद में अगर वो कमिटी रिपोर्ट सबमिट करता है कि रियली ये जो सर्टिफिकेट है फेक है, उसके बाद में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट, आई विल से पुलिस डिपार्टमेंट, वो एक्शन लेके उसका अगेंस्ट में कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। अगर उसको नौकरी मिला है उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट नौकरी भी जाएगा और फादर पेरेंट्स का अगेंस्ट भी एक्शन होगा और इश्यूइंग अथॉरिटी का अगेंस्ट भी एक्शन होगा। दिस इज द law and these certain guidelines have been, parameters have been laid down by the honorable supreme court in the case of Madhuri Patil. Please note down it, कुमारी माधुरी पाटिल्स केस है। और तिपरामी मानलोंग का केस जो है ऑलरेडी डिसाइडेड केस है, वो दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज रिपोर्टेड। सो मेरा यही रहेगा पॉइंट नंबर 1 पे कि स्टेट गवर्नमेंट को काइंडली मेक ए रिक्वेस्ट एंड विथ रिगार्ड टू द सर्टिफिकेट्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन इशूड, उसके लिए आप कंप्लेंट फाइल करो स्टेट गवर्नमेंट को। आप हम लोग प्रेशर दे सकता है कि आप इतना टाइम में आप एक्शन लो, नहीं तो फिर वी विल हैव टू, जो भी है धारणा आप सोल्व दो। सर नोज इट वेरी वेल हाउ टू डील विद द गवर्नमेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट regarding this उसका जो अप्रोच है, this is really appreciable. This is regarding point number 1. The point number 1 is tick mark now, that is done now. Now second number is, I'll be very short. Second number is strengthening of inner line permit system. Again very important, very important. Inner line permit हम तो बोलते, आप देखा ये गेट में क्या बोलेगा ही क्या, बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा हम। I would not hurt anybody's sentiments. Directly coming to law. 1873 we have a law, we say we have a law. Who prepared the law way back in the 1873? What has prevented and what has stopped the state government to make and legislate a law regarding the regulation of inner line permit? ऐसा क्या लॉ है, ऐसा क्या एक बाधा आया स्टेट गवर्नमेंट का कि मतलब वो आज तक कोई कानून नहीं बनाया इनर लाइन परमिट को रेगुलेट करने के लिए? वे बैक 1873 का कानून को वो स्टेट गवर्नमेंट आज तक फॉलो कर रहा है, जो कि अभी तक एग्जॉस्टिव नहीं है। 7 या 8 रेगुलेशन है इस पे, 7 या 8 रेगुलेशन। मन मर्जी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करता है, ये सही बात बोल रहा है आपने, प्लीज अंडरलाइन इट। स्टेट गवर्नमेंट इशूज ए नोटिफिकेशन व्हिच इज अदरवाइज नॉट परमिसिबल अंडर दिस रेगुलेशन, saying that this online will be there and that online will be there, some persons will be authorized to sit in the gate and they will be authorized to collect money and then allow the person to pass
enter into the territory of Arunachal Pradesh. This is happening. अभी भी हो रहा है. अभी भी आप दिराक गेट में जाओ, अभी भी आप दिराक गेट में जाओ, कितना लोग घुसता है. आप बंदरदीवा गेट में जाइए. तो इसीलिए जो 1873 का जो रेगुलेशन है, जो 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का है, उसको कंप्लीटली रिपील करना है. रिपील करना है. आप सोच के देखिए ना, जस्ट इमेजिन, ना हम जन्म हुआ है, ना आप जन्म हुआ, ना कोई जन्म हुआ, ना ये पृथ्वी सृष्टि नहीं हुआ, लगभग ऐसे ही लग रहा है हमको. 1873 में वो कानून बनाया. आज तक इनर लाइन परमिट रेगुलेशन को वो गवर्न करता है. वो गवर्न करता है. क्या हमारा हक नहीं है क्या बोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को? आप लोग क्यों बैठा हुआ है? सिंपली इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग उठा दिया, रास्ता बना दिया. इज दिस ए डेवलपमेंट? नो, नॉट एट ऑल. हम बता रहे हैं आपको, आज राइट फोरम मिला है, हम बता दे रहे हैं आपको. सी देखिए, आप अगर बिल्डिंग खड़ा कर दिया, सैंक्शन पास करवा दिया, किसी को काम दिला दिया, यस, मोस्ट ऑफ द पीपल सिटिंग एट होम विल थिंक दैट गवर्नमेंट इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब. ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इसका क्या इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, लोगों को पता नहीं है. और इसके अलावा भी तो सरकार का बहुत सारा काम है ना. आपको हमारा स्टेट को आप बचाओ ना, हमारा स्टेट को बता. एसटी तो बचा लिया आप, लोगों को अंदर ढुकने से मना करो ना. अगर इलीगल घुसाओ, वी आर डेमोक्रेटिक एंड एवरीबडी हैज द राइट, everybody has a right to pass, but then subject to हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट इज ए प्रोटेक्टेड स्टेट बोलता है, प्रोटेक्टेड स्टेट है जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन. तो इसीलिए हमारा ये सजेशन रहेगा एसटी बचाओ आंदोलन को कि सरकार को ये भी प्लेस करना चाहिए कि 1873 का जो कानून है, जो कि रिगार्डिंग ग्रांट एंड इशुएंस ऑफ ILP को जो गवर्न करता है, उसको कंप्लीटली रिपील करके नया कानून पेश करें जल्द से जल्द, जल्द से जल्द. वो तो चाय समोसा खा के पास कर देगा स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं है. चाहे सब होइगल बनाए दे, लगाए दे, नोटिफाइड इट हैज बिकम इन लॉ, ऐसा है. ये अगर करेगा, आपको बता रहे 1873 रेगुलेशन में हम बता रहे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, प्लीज बियर विथ मी फॉर 5 मिनट्स. 1873 का जो रेगुलेशन है सर, 1873 का जो रेगुलेशन है, उसमें ऐसा प्रावधान है कि पुलिस वाला उसको अरेस्ट करके जेल भी डाल सकता है. आप डाटा कलेक्ट करके आप बता दो, आज तक अरुणाचल प्रदेश में ILP के लिए कोई भी कन्विक्शन हुआ है? बता दो, आप बता दो, आप करिए. आप ये भी आपका डाटा में उसमें लगा लीजिए कि आज तक जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के हिसाब से कन्विक्शन रेट कितना है. इट विल बी -0 रेडर. जीरो का भी वैल्यू होता है, इट विल बी -0 का है. आप बताइए, पैसा लेके छोड़ देता है, गेट का पार करता है. रियली किसी का अगेंस्ट में नहीं है, हम किसी का फेवर में नहीं बोल रहे, कानून के हिसाब से बता रहे हैं. अगर आप सही में काम कर रहा है, not that to show the public, just do your duty properly, save the state, save the state. 1873 का कानून है, उसमें तो फाइन लेके छोड़ देने का किसी का पावर नहीं है. वो जो भी करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट करे, सॉरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है. वो अगर सेकंड क्लास है, ड्यूली स्पेसिफाइड और स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होना पड़ता है. और हमारा यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं कि जुडिशरी सेपरेट नहीं है, बकायदा जुडिशरी सेपरेट होकर हमेशा जजमेंट्स पास करता है, ऑर्डर्स पास करता है. क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा पुलिस वाला SP सर को भी और DSP सर को भी, जितना भी इनर लाइन का केस है, आप लोग रजिस्टर करके, वो चाहे बाहर में जाओ, किसी को कोई वो नहीं है. आप अगर वायलेशन किया है तो वायलेशन का जो वो चीज है इफेक्ट आपको मिलना चाहिए. इसीलिए जो भी चीज है FIR करके उसको जेल में, तभी उसका मिलेगा. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट? वी विल हैव टू अंडरस्टैंड पनिशमेंट, पेनोलॉजी का कंसेप्ट क्या है. पकड़ के जेल ढुकाया, खुश हो गया हम, ऐसा नहीं है. पकड़ा आदमी को जेल ढुका दिया, वी आर हैप्पी, नॉट लाइक दैट. वी शुड ऑब्जेक्ट और वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट. पेनोलॉजी क्या चीज है, क्यों पनिशमेंट देता है? लोगों में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, इसीलिए डरता है लोग. तब जाके नेक्स्ट फ्यूचर में वो नहीं करेगा. सो दिस इज द थिंग विच आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट दैट दिस हैज टू बी ड्यूली कॉम्प्लाइड विद. एंड नया लॉ तो लाना ही है, लेकिन अभी भी जो लॉ है, कम से कम जो है, नाय मोहम्मद कोई कोना मामाय भाल बोलता है, तो उसी से भी आप कानून चलाओ करके 1873 का रेगुलेशन के हिसाब से करना चाहिए. ये हो गया सेकंड. एंड सेकंड इज स्ट्रिक्ट मार्क. नाउ कमिंग टू द थर्ड इशू रिलेटिंग टू नॉन APST लाइनेज क्लेम्स. ये तो दिस विल बी द रेपुटेशन ऑफ द फर्स्ट थिंग, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा, हम जस्ट 2 लाइन बोलेगा. इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होता है, जैसे कि अभी ऑफस्प्रिंग वाला जो बात है, ऑब्वियसली जो फादर अगर नॉन APST है, नॉन ट्राइबल है, मम्मी APST, उसको तो नहीं मिलेगा, दिस इज सेटल्ड. लेकिन अगर ये सिचुएशन में, मान लो ये सिचुएशन है, बाद में आके दोनों सेपरेट हो गया है, और जो बच्चा जो है मम्मी का साथ रह रहा है, बहुत दिनों से, बहुत सालों साल से हो सकता है दोनों का कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं बना हो,
तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट का सेटल जजमेंट है। वी शुड नो द एक्सेप्शंस टू दैट, कि ऐसा सिचुएशन में अगर वो भले ही उसका पापा नॉन ट्राइबल था लेकिन वो कुछ रीजन से मम्मी का साथ ही रहे, वो सिंगल मदर हो गया, तो वो वी शुड नो सर्टेन एक्सेप्शंस। क्या अगर जनरली तो नहीं होना चाहिए, इज देयर एनी एक्सेप्शन इन दिस, ये सोचना है। तो एक्सेप्शन को थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो सब देख लेना है। तो अदरवाइज तो मिलना ही नहीं चाहिए ऑफस्प्रिंग को, ये तो सेटल्ड है। एंड रिगार्डिंग व्हाट इज दिस illegal infiltration and illegal immigration, again this is the same thing। अगर हम ये चीज को तो बहुत वो किया है, बहुत स्पेसिफिक किया है, लेकिन आई वुड प्रिज्यूम दैट रिगार्डिंग illegal infiltration and illegal immigration, this expression shall govern to the indigenous as well as to the non-indigenous as well as to the persons who have come from other district। मेरे हिसाब से हाँ, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एंड इलीगल इमिग्रेशन का जितना तक बात करता है, आई डोंट फील दैट दिस ओनली रिलेट्स टू द नॉन ट्राइबल्स, बट देन दिस मस्ट रिलेट, अगर आपका क्या है वो पता नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से सिंस इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन का जो बात है आपका, हाँ सर, ये क्या बोलते हैं, इवन बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेशन में भी वो प्रोवाइडेड है कि अगर अपना डिस्ट्रिक्ट है, अदर पर्सन्स कैन नॉट एंटर इनटू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अदर प्लेस, ऐसा करके है। तो 1999 में आपको तो पता ही है। हाउएवर आई एम रिटारेटिंग वेरी शॉर्टली सेइंग दैट 1999 का जो नोटिफिकेशन है सरकार का कितना हद तक वो लीगली सस्टेन करता है नहीं करता, दैट इज अ सेपरेट पार्ट। लेकिन सिंस दैट हैज बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, आई एम सेइंग गवर्नमेंट, नॉट बाय डेप्यूटी कमिश्नर। तो डेप्यूटी कमिश्नर को रिसेंटली हाल ही में हमने 2023 में, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर, ILP को लेके हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट को लेके दिया है, और ST को लेके रिप्रेजेंटेशन हमारा पास रिकॉर्ड है इसमें, तो ताइक हम सिंह काउंसिल की तरफ से। लेकिन वो कुछ ना कुछ वजह से शायद फॉलो नहीं हो पाया, हम लोग भी फॉलो नहीं कर पाया। तो रिसेंटली हाल ही में अभी कुछ दिन पहले हमारा रेस्पेक्टेड डेप्यूटी कमिश्नर सर ने निकाला ऑर्डर की, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है 1999 का रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे सस्टेन कर ही रहा है। और ऑनरेबल हमारा रेस्पेक्टेड DC सर ने बोला है कि इसको स्ट्रिक्टली कॉम्प्लाई करना है विद ए कॉपी which has been furnished to all the HODs as well as to the police for its enforcement। तो मेरे हिसाब से 90 इस चीज़ को अगर आपका फर्स्ट वाला जो हम बोला है APST वाला जब ये वो चीज़ को इसमें ये पॉइंट को उसमें भी वो लोग डाल सकता है स्टेट गवर्नमेंट। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app